Good morning student. Today we are going to learn the numerical based on root locus from unit number 4. So in the previous lecture we discussed the two numerical based on the simple, poles and zero. So today we have a numerical based on complex poles. So let us see the question asked in the university question paper is GH is equal to K upon S into S square plus 2S plus 5. Okay. So this is the numerical. So as I told you, in the numerator there is a 0 denoted by Z. In the denominator there is a poles denoted by P. Okay. So first we have to find out the number of poles. So see here in the numerical in the denominator there is a one equation having highest order is 3. S into S square is S cube. So highest order is 3. So we have a number of poles are 3. तो इसकी पोजीशन आपको फाइंड करनी पड़ती है. तो इक्वेट दैट इक्वेशन विथ 0. व्हेन वी इक्वेट दैट इक्वेशन विथ 0 वी गेट द पोल्स पोजीशन. फर्स्ट पोल्स पोजीशन इज एट 0. Second is -2 plus 2i, that is complex poles, and third is -1 minus 2i. Okay, so we have a three poles having position is 0, -1 plus 2i and -1 minus 2i. Okay, next step is to find out the number of zeros. So in the numerator there is a no equation in the S form, so we have a 0 is 0. Okay, देन नंबर ऑफ रूट लोकस. कितने नंबर ऑफ रूट लोकस है? तो जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतने नंबर ऑफ रूट लोकस होंगे. ओके, देन so number of root locus are P is equal to 3. Okay, because there are a highest number is 3. Then number of root locus ends at 0. So there is a no 0. So root locus ends at 0 is 0. Then number of root locus goes to infinity. कितने number of root locus infinity तक जाते हैं? So we have a formula for that, P minus Z. Poles minus 0, which is 3 minus 0 is 3. Okay. Then number of asymptote. Asymptote कितने हैं? तो उसके लिए formula है P minus Z. तो पोल्स है 3, 0 है 0. सो वी गेट ए नंबर ऑफ असिम्पटोट्स आर 3. तो वो तीन असिम्पटोट्स के एंगल कितने हैं? तो वी हैव अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर दैट. फाई ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 180 इंटू 2 क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई पी माइनस जेड. तो पी माइनस जेड का आंसर है 3. क्यू की आपको वैल्यू अज्यूम करनी पड़ती है. जितने असिम्पटोड होंगे उतनी वैल्यू आपको अज्यूम करनी पड़ेगी. तो हमारे पास तीन असिम्पटोड है, तो तीन वैल्यू हमने अज्यूम की, दैट इज 0, 1 एंड 2. ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो. सो व्हेन वी पुट q इज इक्वल टू 0, सो यू गेट ए एंगल इज 60 डिग्री. व्हेन वी पुट q इज इक्वल टू 1, वी गेट एंगल इज इक्वल टू 180. एंड व्हेन वी पुट q इज इक्वल टू 2, सो वी गेट एंगल इज इक्वल टू 300 डिग्री. सो देयर आर ए 3 एंगल, 60 डिग्री, 180 डिग्री एंड 300 डिग्री फॉर दी 3 asymptote. Okay, then next we have to find out what is the center of that angle. So for that we have a next term, that is centroid, which is denoted by sigma of A. Having formula is sum of all angles, sum of all poles minus sum of all 0 divide by P minus Z. तो जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे उनकी पोल्स की पोजीशन की एडिशन आपको करनी है. जितने नंबर ऑफ 0 होंगे उनकी पोजीशन की एडिशन करनी है, डिवाइड बाय P माइनस Z. उसका आंसर है 3. तो कितने पोल्स है हमारे पास? 3. और उसकी पोजीशन कहाँ पे है? 0. उनकी एडिशन करो, दिस इज 0, -1 प्लस 2i, -1 माइनस 2i. ओके, तो इनके एडिशन के हम लोगों ने -0 हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 पुट किया. P माइनस जेड का आंसर आया 3. तो यहाँ पे ये प्लस 2i और -2i कैंसिल हो जाता है. सो हियर -1 प्लस -1 इज -2. सो -2 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू sigma centroid 0 minus 0.667. So we get center for that angle is minus 0.667. Okay, the next term is the root stability for finding the value of range of k and to find out the crossover frequency. So for that we have to perform the root stability, which is having we required for that is characteristic equation 1 plus gh is equal to 0. gh का इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ये इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया है, दैट इज 1 प्लस दिस gh इक्वेशन. उसको 0 के साथ इक्वेट करना है. फिर इसको आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. ये इक्वेशन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो और प्लस के करके इसको इक्वेट करो 0 के साथ. सो दिस इक्वेशन विल बी s इंटू एस स्क्वेयर एस क्यूब प्लस 2s स्क्वेयर प्लस 5s प्लस ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला k विच इज इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर की टर्म आपको यहाँ पे नहीं लेनी है. देन वी हैव टू परफॉर्म द रूट स्टेबिलिटी. तो मैंने आपको बताया था जो भी s की टर्म यहाँ पे होंगी उसको आपको कॉलम में लिखना है, सिंगल कॉलम में.
सो एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस डैश, एस जीरो, ये हमने एक कॉलम में लिखा। फिर इसके जो कोएफिशिएंट होंगे वो 2 रो में आपको कवर करने हैं। तो एस क्यूब का कोएफिशिएंट था 1, एस स्क्वायर का 2, एस डैश का 5, एस जीरो का k। इस तरीके से मैंने अपने कोएफिशिएंट यहाँ पे पुट किए और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे 0 0 करो। देन हमको फाइंड करना है एस डैश, ये वाला इक्वेशन फाइंड करना है। तो इसके ऊपर के जो 4 टर्म रहेंगे, ये 2, 5, k एंड 1, इनका करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड बाय टर्म रहेंगी 2 एज ए कांस्टेंट। तो 2 इंटू 5 दैट इज 10, माइनस k इंटू 1 इज k डिवाइड बाय 2, मतलब 10 माइनस k डिवाइड बाय 2, ये इक्वेशन हमारा आएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो ये कैसे आएगा, तो ये कॉलम आपको छोड़ देना है, ये जो 4 टर्म रहेंगी उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 2, 2 इंटू 0 0, माइनस 0 इंटू 1 इज 0 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 0। बाकी आगे की टर्म आप सॉल्व करोगे तो 0 ही आएगा, तो उसको छोड़ देना। फिर S0 कैसे आएगा, तो S0 के लिए आपको इसके ऊपर वाली 4 टर्म लेना है, मतलब 1 2 3 4, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है डिवाइड बाय ये वाली टर्म। ठीक है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस 10 माइनस k डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय k, माइनस 0 इंटू 2 इज 0 डिवाइड बाय दिस टर्म, मतलब ये सभी टर्म कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे कितना आंसर बचेगा k। तो हियर आई पुट वैल्यू इज k। ओके, so here we perform the root stability criteria, then we have to find out the range of k. Okay, so here I consider S0 वाला इक्वेशन में कंसिडर करूंगी, उसमें I consider कि which is greater than 0, तो मुझे यहाँ पे मिलता है k is equal to 0। then next I consider S dash वाला इक्वेशन, 10 minus k greater than 0, 10 minus k greater than 0, stop। So here we consider S dash equation 10 minus k divided by 2 which is greater than 0। तो ये 2 इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। So 10 minus k is equal to 0 अगर करते हो तो k is equal to 10। So here I get range of k is greater than 0 and less than 10। So I consider this k is nothing but k maximum which is 10। तो इसमें k maximum की वैल्यू हम लोग लेंगे 10। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, फॉर दैट वी रिक्वायर द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। इसमें जो इवन ऑर्डर वाला टर्म रहेगा उसमें अगर k होता है तो वी कंसीडर दिस इज एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये है, लेकिन इसमें सिर्फ सिंगल k दिया है तो इक्वेशन नहीं बनेगा। दिस इज ऑड, दिस इज इवन, तो इवन ऑर्डर ये बन सकता है। तो दिस इज 2s स्क्वायर प्लस k। सो हियर आई कंसीडर ऑक्सिलरी इक्वेशन 2s स्क्वायर प्लस k को आपको अज्यूम करना है k मैक्सिमम। So I put the value of k maximum here. So this is 2s square plus 10 which is equal to 0। इसके आपको फाइंड करने हैं रूट्स। तो जब आप इसके रूट्स फाइंड करोगे तो इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं। तो पहला रूट आता है प्लस 2.23i और दूसरा रूट आता है माइनस 2.23i। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स रूट हो गए। तो वी गेट हियर द क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी दैट इज प्लस माइनस 2.23 रेडियन पर सेकंड। ओके, तो हमको अभी यहाँ पे मिल गया रेंज ऑफ के एंड क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द ब्रेक पॉइंट, और ब्रेक पॉइंट होता है फॉर्मूला dk बाई ds, मतलब k का इक्वेशन आपको फाइंड करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा s से और उसको इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। तो इसके लिए आपको लगता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास है दैट इज एस क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 5s प्लस k। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। हम इसको करते हैं कन्वर्ट k के फॉर्म में। तो हियर आई कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू k फॉर्म। सो अगर हम लोग इस इक्वेशन को k के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो दिस इज k इज इक्वल टू माइनस ऑफ s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 5s विच इज इक्वल टू, इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू s। अगर s से डिफरेंशिएट करते हैं तो dk बाई ds ये आता है आपका माइनस 3s स्क्वायर माइनस ऑफ 4s माइनस 5। ठीक है, तो इसके आपको फाइंड करने हैं रूट्स। व्हेन वी फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वी गेट 2 ब्रेक पॉइंट, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर कितना है यहाँ पे 2, तो 2 हाईएस्ट ऑर्डर है तो वी गेट 2 ब्रेक पॉइंट। तो पहला ब्रेक पॉइंट हमको मिलेगा और दूसरा ब्रेक पॉइंट हमको मिलेगा। So according to that we get the break point of the root locus. So first break point we get that is C। इसमें ब्रेक पॉइंट आपके नहीं आएंगे क्योंकि इन दी न्यूमेरिकल वी गेट
टू पोल्स, थ्री पोल्स, लेकिन वो पोल्स आपके कैसे कॉम्प्लेक्स है। पहला पोल है 0, दूसरा पोल है माइनस प्लस कॉम्प्लेक्स पोल है। तो अगर आपके न्यूमेरिकल में 2 कंसेक्यूटिव पोल्स और 2 कंसेक्यूटिव 0 अगर रियल एक्सिस पे नहीं आते तो इन दैट केस आपका ब्रेक पॉइंट नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके रूट्स नहीं निकलेंगे, तो रूट्स मिस है यहाँ पे। सो हियर वी हैव टू राइट वन सिंगल लाइन, दैट इज देयर इज नो 2 कंसेक्यूटिव पोल्स। अगर 2 कंसेक्यूटिव पोल्स आपके रियल एक्सिस पे नहीं है, ठीक है, ये हमारी जो रियल एक्सिस होती है इसमें अगर 2 कंसेक्यूटिव पोल्स या फिर 2 कंसेक्यूटिव 0 नहीं आते हैं तो इन दैट केस देयर इज ए नो ब्रेक पॉइंट, ठीक है। तो इसमें ब्रेक पॉइंट आपका नहीं आएगा, तो ये आपकी स्टेप यहाँ पे कंप्लीट नहीं होंगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपको यहाँ पे क्या करनी है, तो इन दिस न्यूमेरिकल वी हैव अ 2 कॉम्प्लेक्स पोल, ठीक है। तो अगर 2 कॉम्प्लेक्स पोल है तो वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ डिपार्चर, ठीक है। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्या निकलेगा, एंगल ऑफ डिपार्चर विच इज रिप्रेजेंट बाय फाइव, ठीक है। ये टर्म नहीं आई है, इसके पहले के न्यूमेरिकल में नहीं थी। तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल एंगल्स मेड फ्रॉम पोल्स। तो पोल्स टू पोल आपके जितने एंगल रहेंगे उनकी एडिशन करनी पड़ेगी, प्लस 5d माइनस सम ऑफ ऑल एंगल मेड फ्रॉम 0 विच इज इक्वल टू 180, ठीक है। इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा ग्राफ, क्योंकि एंगल आपको तभी मिलेंगे। सो हियर आई कंसीडर दिस इज माय रियल एक्सिस, दिस इज माय इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो इसमें आपको स्केल कंसीडर करना है। सो आई कंसीडर दिस इज ओरिजिन, ये -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ये हमारी हो गई रेंज, ठीक है। तो हमारे जो पोल्स आए थे वो 3 आए थे। तो पहला पोल जो था हमारा, our फर्स्ट पोल हमारा आया था 0 पे, दूसरा पोल -1 + 2i पे, तीसरा पोल था -1 - 2i पे, ठीक है। इसमें सेंट्रॉइड हमारा आया था -0.667 और एंगल आए थे पहला 60 डिग्री, दूसरा 180 डिग्री और तीसरा 300। इसमें ब्रेक पॉइंट नहीं आया था बिकॉज देर आर ए नो 2 कंसेक्यूटिव रूट लोकस, तो ब्रेक पॉइंट यहाँ पे नहीं है। W मैक्स हमारा कैलकुलेट हुआ था, दैट इज ±2.23 रेडियन पर सेकंड। सो हियर ड्रॉ दी ऑल टर्म्स ऑन द ग्राफ। सो पहला पोल है 0 पे, दूसरा पोल है -1 + 2i, -1 + 2i मतलब ये आपका दूसरा पोल है, और तीसरा पोल है -1 -1 -2i पे, ठीक है। इसमें 0 नहीं है। सेंट्रॉइड है -0.07, सी वी कंसीडर दिस इज ए सेंट्रॉइड। पहला पोल है आपका पहला जो एंगल है वो 60 डिग्री, तो ये आपका सेंटर रहेगा। यहाँ पे आप डी करके इस तरीके से मेजर करोगे। तो पहला अगर मैं कंसीडर करती हूँ 60 डिग्री, सो आई कंसीडर दिस इज ए 60 डिग्री एंगल, तो फाई ए विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेकंड आपका एंगल है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री आपका यहीं पे आएगा, तो इसको ही डार्क करो और यहाँ पे लिखो फाई ए इज 180 डिग्री। तीसरा आएगा आपका 300, तो अगर मैं नीचे से लेती हूँ तो -60 डिग्री में यहाँ पे मेजर कर सकती हूँ। सो दिस इज योर सेंटर, कंसीडर दिस इज ए सेंटर और लिखो यहाँ पे फाई ए इज इक्वल टू 300 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एंगल्स मिल गए। नेक्स्ट यू हैव टू रिप्रेजेंट द क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी +2.23, सो दिस इज +2.23। आई कंसीडर दिस इज W मैक्स, दैट इज +2.23 रेडियन पर सेकंड। सिमिलरली यहाँ पे आएगा -2.23 रेडियन पर सेकंड, ओके। सो वी हैव टू फाइंड आउट दी डिपार्चर एंगल। सो फॉर दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स मेड फ्रॉम पोल्स, अभी इधर ध्यान दो, पोल्स टू पोल आपका कितना एंगल है वो आपको मेजर करना है। मतलब ये जो इलोंगेशन है ये आपका रहेगा एंगल मेड फ्रॉम पोल। फिर पोल्स टू पोल आपका सेकंड एंगल कितना रहेगा, तो दिस इज परपेंडिकुलर, ये रहेगा आपका फाई ऑफ P2, ये फाई ऑफ P1, फाई ऑफ P2। सम ऑफ ऑल एंगल मेड फ्रॉम 0, यहाँ पे 0 कुछ भी नहीं है, सो वी डोंट गेट एनी एंगल, तो ये आपकी टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाती है और इसमें आपको 2 एंगल मिलेंगे, पहला ये, दूसरा ये, ठीक है। सो लेट अस सी ये कैसे निकलेंगे। ये थोड़ी सी टर्म डिफिकल्ट है तो वो आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। सो हियर अभी इसके लिए आपको क्या करना है, ये इतना एंगल अगर आपको चाहिए तो ये टोटल एंगल कितना रहेगा 180, तो ये 180 अगर
180 में से अगर इतना एंगल मैं माइनस करती हूँ, ठीक है, आई कंसीडर दिस ट्रिग्नोमेट्री, ये मेरा पोल है पहला, तो आई कंसीडर ये डिस्टेंस मेरे को पता है कितना है 1, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है 2। तो अगर मेरे को ये एंगल मिलता है तो आई कैन यूज हियर tan ऑफ फाई इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। तो अपोजिट कितना है 2 और एडजेसेंट कितना है 1, ठीक है। तो दिस इज फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/1। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वी गेट 117 डिग्री एंगल, ठीक है। और दूसरा जो है वो परपेंडिकुलरली है, तो दिस वी कैन कंसिडर दिस इज फाई ऑफ P1, और फाई ऑफ P2 जो है वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का एंगल होता है 90 डिग्री। सो हियर आई गेट द सम ऑफ, तो इसमें मैं अभी पुट करूंगी, सो आई गेट फाई ऑफ D विच इज सम ऑफ ऑल एंगल मेड फ्रॉम पोल इज फाई ऑफ P1 प्लस फाई ऑफ P2 प्लस फाई ऑफ D माइनस सम ऑफ ऑल एंगल मेड फ्रॉम 0 इज 0 विच इज इक्वल टू 180। तो ये आया हमारा 117 प्लस 90 प्लस 5D इज इक्वल टू 180। सो हियर आई गेट फाई ऑफ D, एक एंगल आपको मिलेगा दैट इज प्लस 27 डिग्री, और उसका पोजीशन रहेगा -1 -2 पे। ये रूट लोकस हमेशा सिमेट्रिक होता है, तो दूसरा आपको अज्यूम करना पड़ेगा -27 डिग्री एंगल एट -1 प्लस 2 पे, ठीक है। सो वी गेट एंगल ऑफ डिपार्चर हियर दैट इज प्लस 27 डिग्री और -27 डिग्री। अभी आपको ये एंगल्स यहाँ पे शो करने पड़ेंगे, एंगल ऑफ डिपार्चर ऑन दिस ग्राफ, सो देन वी कैन कंप्लीट अवर न्यूमेरिकल। सो देखो पहले कौन सा एंगल है, प्लस 27 डिग्री एट -1 -2 पे, ठीक है। तो प्लस 27 डिग्री अगर आप निकालते हो तो हियर वी गेट, अगर आप इस तरीके से मेजर करोगे प्लस 27 डिग्री, तो 27 डिग्री सपोज आई कंसिडर ये इतना आएगा, ठीक है, आई अज्यूम कि ये इतना आएगा। और अगर आप इधर से लेते हो -27 एट -1 -2 पे, तो आपको इस तरीके से मेजर करना पड़ेगा -27 डिग्री। सो आई कंसिडर कि ये इतना आएगा। सो हमको अभी क्या करना है, ये फाई ऑफ D को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहला एंगल आया है प्लस 27 डिग्री और उसकी पोजीशन है -1 -2 है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मेजर करना है प्लस 27 डिग्री, तो ये मेरा D रहेगा, तो आप इस डायरेक्शन से मेजर करोगे प्लस 27 डिग्री। तो अगर मेजर करोगे तो मैं अंदाजे से कंसिडर करती हूँ कि ये इतना डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे क्रॉस करना है और क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी में से इसको पास करना है और उसके खींच लेना है, तो दैट इज योर रूट लोकस 1, ठीक है। सिमिलरली दूसरा एंगल है -27 डिग्री और इसकी पोजीशन है -1 -2। तो यहाँ पे आपको मेजर करना है -27 डिग्री, तो आई अज्यूम कि ये इतना होगा, तो इसको भी सिमिलरली आपको क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी में से पास करना है और इसको ऐसे खींच देना है, दैट इज रूट लोकस 2, ठीक है। तो इसमें ब्रेक पॉइंट नहीं है, तो हमको पता है कि इसमें 3 रूट लोकस है, तो ये मेरा पहला रूट लोकस, ये दूसरा और तीसरा कौन सा रहेगा, तो तीसरा आपका रूट लोकस रहेगा ये 180 डिग्री वाला। सो कंसिडर दिस एज ए रूट लोकस 3। सो इन दिस वे यू हैव टू ड्रॉ ऑल दी पोल्स हियर, ऑल दी जीरोज हियर, सेंट्रॉइड हियर। अगर ब्रेक पॉइंट होता है तो ब्रेक पॉइंट आपको शो करना पड़ेगा। इसमें कॉम्प्लेक्स पोल थे, हमेशा याद रखना, कॉम्प्लेक्स पोल रहेंगे तो एंगल ऑफ डिपार्चर और कॉम्प्लेक्स जीरो रहेंगे तो एंगल ऑफ अराइवल। तो इसमें कॉम्प्लेक्स पोल थे, तो उसके लिए आपको एंगल ऑफ डिपार्चर बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला फाइंड करना पड़ेगा, और जो भी इसके आंसर्स आएंगे वो आपको ग्राफ पेपर पे शो करने पड़ेंगे। सो इन दिस वे वी हैव टू solve this 14 marks numerical based on root locus. Thank you.